Good morning, one and all. Today is 10th January 2022, and we'll be taking different types of functions. C programming, different types of functions. The function which takes argument and returns value. This is first type of function that can be written. The second type of function that can be written is a function which takes argument and returns no value. पहले वाले में वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है. आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम पैरामीटर है. Second type of function can be a function which takes argument and returns no value. Value return नहीं कर रहा है. Third is a function which takes no argument but returns value. And the last one is the function which takes no argument and returns no value. Now we'll one by one we'll take all the four types of functions to be written. So we'll begin with the first one where the function takes argument and returns value. So I am removing these three. So the first type is function which takes argument and returns value. Okay. Now to demonstrate this, we'll take any function, say for example, subtraction of two numbers. So in this case, the function which takes argument and returns value. So this is a return type, that is data type, name of the function and the argument list. Argument list, two integer arguments it is taking. You can have 2, 3, 4, any number of the arguments. This is called as prototype, function prototype or function definition. This statement which is written before the main is called as function prototype or function definition. Okay, since we have written only the prototype, variable name नहीं लिखा हुआ है और definition भी नहीं लिखी हुई है, so it is called as a prototype. Prototype of sub function. This function is returning integer value. Return type is int. Return type is always a data type. Name of the function is sub, and it takes two integer arguments. कितने arguments ले रहा है? दो integer arguments ले रहा है. ठीक है? Semicolon. That means we are not writing the definition. So it is a function prototype or the definition of the function. हमने सिर्फ function का prototype लिखा है. इसका function prototype or the declaration of the function. This is not definition, this is declaration. Definition में तो पूरा curly bracket open करके definition लिखते हैं. So this statement is called as function prototype or declaration of the function. So this function is returning value. It is taking two integer arguments. So this is a function which takes argument and returns value. ये return type integer हो गया. Arguments क्या ले रहा है? दो integer value ले रहा है. सेमीकोलन लिखा, डेफिनेशन नहीं लिखी है. ये डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन या प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन कहलाता है. क्योंकि हमको मेन में इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर जब भी फंक्शन को कॉल करूंगी मेन में, तो वो उसकी डेफिनेशन को ढूंढेगा. उसकी डेफिनेशन ऊपर तो अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम हमको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना जरूरी है. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दिस फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन आफ्टर मेन. मेन के बाद हम सबकी डेफिनेशन लिखेंगे. दो वेरिएबल्स लेगा ये, इंटीजर टाइप, इंटीजर ए, इंटीजर बी, एंड विल बिगिन द डेफिनेशन. सो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे. क्योंकि हम मेन के बाद में डेफिनेशन लिख रहे हैं और मेन के अंदर हम सब जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं, इसलिए इसका फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना जरूरी है. द फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन प्रोटोटाइप और द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. मतलब ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर मेन के अंदर, तो ये मेन के अंदर जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो डेफिनेशन को सर्च करेगा. कहाँ सर्च करेगा? मेन के ऊपर में. तो इसकी डेफिनेशन तो अवेलेबल नहीं है, तो ये देखेगा कि क्या ये फंक्शन प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन लिखने का मतलब है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन प्रोग्राम में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है. अगर ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करेंगे तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को नीचे भी सर्च करेगा, यहाँ पर उसको ये डेफिनेशन मिल जाएगी और फंक्शन कॉल यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ से स्टेटमेंट फंक्शन कॉल पे आ जाएगा और प्रोग्राम जो फंक्शन डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा पार्ट है फंक्शन डेफिनेशन, ये मैं लास्ट टाइम क्लास में बता चुकी हूँ.
function definition. This is function definition, and here we are calling a function. So these are the three terms associated with the function: function prototype, function calling and function definition. ठीक है, ये हमारा function prototype हो गया. This is function we are calling a function, and this is the function definition. अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमने सिर्फ function का नाम लिखा है सब. Now since this function takes two integer arguments, so we have to supply two integer values. Either you supply the constant value 2, 4, or you supply any variable. Okay, so anything can be done with this, but since it takes two integer arguments, so you need to pass two integer over here. अगर ये एक लेता है तो एक पास करना है, अगर ये दो लेता है तो दो पास करना है, अगर ये तीन लेता है तो तीन पास करना है. तो जैसा प्रोटोटाइप और डेफिनेशन है ये तीनों मैच करना चाहिए. फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन, ये तीनों के तीनों मैच करना चाहिए. मैच इन द सेंस जो नाम है फंक्शन का वही नाम सब जगह यूज करना है. जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसमें उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इधर, उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन डेफिनेशन में. जो ऑर्डर में डेटा टाइप है वही ऑर्डर में यहाँ पर भी लिखना है डेटा टाइप, वही ऑर्डर में डेटा टाइप यहाँ लिखना है. जो रिटर्न टाइप यहाँ पर है वही रिटर्न टाइप यहाँ पर भी कंसिडर होगा, वही रिटर्न टाइप जो है फंक्शन डेफिनेशन में होगा. अगर कोई भी एक चीज मिसमैच होती है तो ये फंक्शन जो है वो मैच नहीं करेगा. मतलब सपोज हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लिखा, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो सिर्फ एक सम जो फंक्शन है वो एक इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है, बट ये ना डेफिनेशन से मैच कर रहा है ना प्रोटोटाइप से, तो इसको फंक्शन नॉट फाउंड का मैसेज आएगा. सो इट शुड मैच विद द डेफिनेशन एंड द function call should match with the function definition. Now what is A and B? Here we have taken A and B as variables. Now these two are the two integer variables, these two are two integer variables. A, B are here declared as a local variable. A, B here are local to this main. You can take another variable PQ हम ले लेते हैं, confusion नहीं होगा. तो इनका डेटा टाइप जो है PQ का वो भी कैसा होगा, that is also integer type. So we'll printf message to enter P and Q. So ampersand P comma Q. Scanf %D comma ampersand. अरे एक मिनट, प्रिंटफ में कहाँ से लिखते हैं? ओके, यहाँ हमने P और Q की वैल्यू जो है उसको यूजर से रीड किया. अब हम वी आर कॉलिंग अ फंक्शन ओवर हियर. सिंस दिस फंक्शन इज रिटर्निंग वैल्यू, ये फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है इस तरह से लिखना, मतलब कि फंक्शन को हमने कॉल किया और ये दो पैरामीटर ले रहा है, बट कहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है. आइदर यू कैन रिटर्न द वैल्यू इन द प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ में इसको कैच करना चाहिए, या फिर subtracted value equal to %D. ठीक है, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू इक्वल टू %D. तो अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो हमने ये कौन से इसमें कैच किए, इंटीजर में. दिस सब फंक्शन इज रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू, यहाँ डेफिनेशन में भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो ये जो फंक्शन है कॉल करेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कैच कर लेंगे. यहाँ पर भी हम रिटर्न डायरेक्टली वी कैन रिटर्न A प्लस B. तो ये कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, A माइनस B. देख लो फिर से एक बार पूरा प्रोग्राम कि हम क्या कर रहे हैं. दिस फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स वैल्यू. तो ये फंक्शन जो है ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है दो इंटीजर के
और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर को। तो क्योंकि ये आर्गुमेंट ले रहा है तो हम या तो यहाँ पर कांस्टेंट पास कर सकते हैं, दो इंटीजर 2,4, तो हमेशा 2,4 के लिए सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट किए हुए डेटा के ऊपर ये सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हमने स्कैनफ स्टेटमेंट को लिखा है। तो स्कैनफ %d तो पी और क्यू को हमने यूजर से इनपुट किया और उन वैल्यूज के ऊपर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज फंक्शन कॉल, सिंस दिस फंक्शन इज रिटर्निंग वैल्यू, प्रिंटफ में वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो यहाँ इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ प्रिंटफ रिटर्न कर रहा है, ये भी int है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ कुछ डेटा टाइप दिया हुआ है, इन फ्लोट या कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप दिया हुआ है एक्सेप्ट void, तो यहाँ पर रिटर्न आएगा कीवर्ड void, मतलब इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। सिंस इन दिस केस इट इज रिटर्निंग इंटीजर, रिटर्न टाइप इज ऑलवेज अ डेटा टाइप। तो हमने क्या किया, ए और बी जो वैल्यू हमने इनपुट की है उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर जब कॉल होगा फंक्शन तो यहाँ ये वैल्यू रिटर्न करेगा, दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। अनदर थिंग इज, फिर से मैं बात बताती हूँ कि यहाँ दो इंटीजर वेरिएबल्स है, दो इंटीजर पैरामीटर ले रहा है ये सब जो फंक्शन है। यहाँ पर भी दो इंटीजर पी एंड क्यू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ ए और बी इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स है। जो ये पी और क्यू आर्ग्यूमेंट्स है इनको हम बोलते हैं एक्चुअल वेरिएबल, इनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। पी एंड क्यू आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। व्हाई दीज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट? बिकॉज दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑन व्हिच द फंक्शन शुड परफॉर्म। ये जो पी की वैल्यू है वो ए में चली जाएगी, क्यू की जो वैल्यू है वो बी में चली जाएगी, यहाँ पर जाने के बाद मुझे सब्ट्रैक्ट होंगे एंड द वैल्यू। So P and Q are called as the actual argument and A and B are called as the formal arguments because it is doing the process of taking the values, P की वैल्यू Q की A के अंदर आ गई और Q की वैल्यू जो है B के अंदर आ गई। मतलब this statement is equal to A is equal to P and B is equal to Q. Okay. Just execute the code. Compile किया हमने। After compilation you find that there is no error नहीं है एक भी, ठीक है। फिर इसको रन करेंगे। P की वैल्यू हमने डाली 3, Q की वैल्यू हमने 4, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू विल बी -1, ठीक है। So this is a function which takes argument and returns value. Write another function, the second type of function which takes argument and returns no value. The second type of function which again just one more thing here in this case, this is one way of writing this function. Another way is you can call this function and catch the value in a variable. आप इसको ऐसा ना लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। This is another way of writing the function call statement. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, function call को इस तरह से कैसे लिख रहे हैं हम? This is another way of calling the function. You catch the value in a variable. What is this variable? S. S is of type integer. Because it is returning value in an integer variable, you can catch the value in the integer variable. इस integer variable में सबकी value को catch किया. It is returning value ना, जब ये सब जो PQ है ये कुछ value return कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर return लिखा है return a minus b return करने के बाद में ये replace हो जाएगा जो value return की है यहाँ पे। तो जो भी value return की है -1, तो S will contain -1 and now we can print the value of S here like this. So this is another way of calling a function which returns value and takes argument. So this type of statement also you can see in some book. So a function which takes argument and return the value. So okay, you can return the value either in the variable or directly in a printf statement, or we can return the value in some other function. So there are different ways in which you have to write. If this just means that in case if the function returns value, it should catch in some variable or in some statement. अगर function value return करता है integer value, float value या कुछ भी value return करता है, तो या तो एक वेरिएबल में या printf की स्टेटमेंट में उसको कैच करना जरूरी है. So if I compile this program will be compiled and we will get the same result. प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ठीक है।
Now we will take the second one, a function which takes argument and returns no value. जो second way है कि function जो है वो argument लेता है but it returns no value, value return नहीं कर रहा, value return नहीं कर रहा, तो I'll write like this, or we can write void. Void means that the function returns no value. Void means what? The function returns no value. अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? Void. Either you write like this or you write like this. It means that the function is not returning any value. So if I write like this, void, it means that the function is not returning value. So we will print the value directly in the function. So we'll print the value, say a minus b. Directly लिख दिया यहाँ पे a minus b. तो दोनों वैल्यू को लिया, सब्ट्रैक्ट किया, प्रिंट कर दिया. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आएगी. आप कैसे भी लिख सकते हो प्रोग्राम को, ठीक है. यहाँ पर हमने डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर दिया. तो जब हमने ये फंक्शन कॉल किया, क्योंकि यहाँ void है, ये फंक्शन डेफिनेशन भी void है, it is not returning any value. So here how do you call a function? You call a function just by the name and the argument. So this is calling a function which takes argument and returns no value. Value return नहीं कर रहा, तो किसी printf स्टेटमेंट में या वेरिएबल में कैच करने की भी जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का नाम लिखना है और जो पैरामीटर है वो लिखना है. तो यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को जब ये स्टेटमेंट है कॉलिंग अ फंक्शन, सो इट विल कॉल द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड डायरेक्टली printf स्टेटमेंट सब्ट्रैक्टेड वैल्यू परसेंट a minus b को सब्ट्रैक्ट कर देगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. Program will be executed and let's run the program. ठीक है, enter PQ 5 3. So 5 minus 3 is 2. So you will get the subtracted value as 2 over here. ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है सेकेंड टाइप. ओके, नाउ दिस वाज सेकेंड टाइप. ठीक है, हमने अभी किया है द फंक्शन विच टेक्स आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स no value. So this is the function which takes argument and returns. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ से मैंने void word हटा दिया, तो डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो यू विल गेट द warning error. Data definition has no return or storage class. Warning can be ignored and you can continue also. तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह से void जो है वो लिखना कंपलसरी होता है, यहाँ पर भी लिखना कंपलसरी है. अदरवाइज ये वार्निंग आया तो वार्निंग कैन बी इग्नोर्ड एंड यू कैन कंटिन्यू आल्सो. So specifically we need to write word here because it is giving the warning. Okay. So execute the program. Program is compiled. कोई भी error नहीं आया है, ठीक है, no error, warning, and then you can run also. So I am not running the code. This is the second way of writing a function which takes argument and returns no value. Let's switch over to the third type, a function which takes no argument and returns some value. Which takes no argument. That means here this function will not take any argument and will keep it blank, and but it returns the value. What is the type of value it returns? Integer. At the time of writing the definition, we have to write in the same way that it is returning integer value and is not taking any argument. Argument नहीं ले रहा, ठीक है. So अब यहाँ पर वैल्यू कैसे पास होगी और फंक्शन डेफिनेशन में हम किसको माइनस करेंगे और किसको प्लस करेंगे. तो हम क्या करते हैं, जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो यहाँ दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, p, q, सेमीकोलन, और ये दोनों स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर कर देती हूँ.
और प्रिंटिंग नहीं करते, हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं क्योंकि इट इज रिटर्निंग वैल्यू p माइनस q। यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू इंट लिखा है या रिटर्न लिखा है p माइनस q, तो यहाँ पर एक वेरिएबल में कैच करेंगे and then we will print it using printf, या फिर डायरेक्टली printf में भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। Subtracted value equal to subs. Subtracted value equal to percent d s। तो देखो यहाँ पर ये जो प्रोटोटाइप है इसमें रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा, तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल के अंदर वैल्यू ट्रैक की, ये फंक्शन कॉल है तो 2 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर भी 2 आर्ग्यूमेंट लिखा है इंट कॉमा इंट, ठीक है। और p और q की वैल्यू नहीं फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट है वो, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, सो फंक्शन विद नो function which takes no argument and returns value। तो function which takes no argument यहाँ पर empty है, यहाँ पर है function with no argument और function with no argument, it is returning value, it is catching value and it is returning value। so किस वेरिएबल में वैल्यू कैच हो रही है, s वेरिएबल में, so s वेरिएबल में वैल्यू कैच हो रही है। let's compile the program, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं। you can see that the program is executed successfully। So now we'll enter the value of p and q. P की value 6, q की value 2, so 6 minus 2 will be 4। so this is writing a function which takes which takes no argument and returns value, function which takes no argument and returns value, function which takes no argument and returns value। okay, so हमने ये प्रोग्राम लिखा है, that is third type, function which takes no argument and returns value। last one is a function which takes no argument and returns no value। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो वैल्यू रिटर्न करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, void means it is not returning value, it is not returning value, so will not catch it। we will simply call the function, it is not returning value, so we'll write void here, and it is not taking argument, empty, so we'll take pq variables, enter pq, scanf pq, instead of printing over here we will returning the value, instead of returning the value we'll print it, printf %d subtracted value equal to %d comma p minus q। ठीक है, प्रोग्राम सेव किया। so this is a function which, fourth one, function which takes no argument and returns no value। so function prototype which takes no argument, यहाँ पर no argument है, function which takes no argument and returns no value, function which takes no argument no return value, so this is function call भी मैच कर रहा है। function definition में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, ना ही रिटर्न कर रहा है, तो नहीं ले रहा है तो फिर वैल्यू कहाँ से सप्लाई करेंगे, हम लोग वैल्यू जो है वैल्यू जो है फंक्शन के अंदर जो मेन जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके अंदर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, उसके बाद में printf एंटर टू वैल्यूज एंड scanf स्कैन किया और यहीं पे हमने उसको प्रिंट कर दिया, यहीं रीड किया यहीं प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम ना आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना रिटर्न कर रहे हैं, सबकी सब चीजें जो है वो फंक्शन के अंदर होगी, तो दोनों वेरिएबल्स को हमने यहीं पे रीड किया, यहीं पे स्कैन किया
दोनों वैल्यूज को और यही प्रिंट कर दिया, तो ये स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमने मेन में किसको कॉल किया, सब फंक्शन। So this is a function takes no argument and does no value. So function, it is not taking any argument, it is not returning any value. Simply you are calling a function with a name. It is not taking any argument, कोई argument लेने ना return कर रहा है। जब definition लिखी तो function which is taking no argument and returns no value। ये देखो यहाँ पर कोई भी argument नहीं ले रहा, कोई भी value return नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, उनको यूजर से स्कैन किया, प्रिंटफ किया एंटर टू वेरिएबल्स पी एंड क्यू एंड स्कैनफ पी एंड क्यू, और जो उनकी सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया। कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइलेशन सक्सेसफुली। ठीक है, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन किया, रन करने के बाद तो p की वैल्यू क्या ली, 8, q की वैल्यू सपोज 5, आगे सब्ट्रैक्टेड वैल्यू इज, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज 3 वैल्यू प्रिंट करते हैं। सो दिस इज फोर्थ टाइप वेयर द फंक्शन इज रिटर्निंग no value and taking no argument. Function which takes no argument and returns no value. This is function which takes no argument, returns no value. Okay. So today's session, I'm ending today's session.